Hello dear aspirants. So today it is a special session for the CSAT and you can say the most warning question at this point of time, right? So today I will discuss this CSAT part in my own ways. It may seem that I am a bit slow. It may seem that I am not addressing your problem at the first second. I will just suggest attend the class till the last moment. Not because you have to waste your time, right? The thing is, you will not catch the message until unless you are not attending the class completely. And rest is up to you. है ना? चलिए. So when I talk about CSAT in this UPSC prelims exam, why it is a warning issue? Because सुनना ध्यान से, we either from the science background, we are from the engineering side or simple BSc graduate or the humanities. ह्यूमैनिटीज वाला परेशान इसलिए है कि उसको लगता है कि उसका क्वांट वीक है. मेनी मैसेजेस आई गॉट. ओके. इंजीनियरिंग वाला इसलिए टेंशन में है क्योंकि उसको लग रहा है अपन ने इंजीनियरिंग किया है फिर भी अपने से जनरल एप्टीट्यूड नहीं हो रहा है. व्हाट आई फाउंड ड्यूरिंग दिस करियर इज aspirants are not struggling because of their knowledge or abilities. They are more struggling because of their inabilities to recognize their strength. And why I am saying like this? Because this CSAT exam, I repeatedly saying this is an exam which is not of knowledge but it is an exam of presence of mind. I repeatedly said it. So the first point I will say, presence of mind, right? And today's topic, that is your quant part, like quantitative aptitude. Fair? How we need to address this topic, that we are gonna discuss today. Also I will reveal the thing that how we can cover this with minimum efforts. चलिए. What I found as an UPSC aspirant, that there is a hype created over this topic, this paper particular. Aspirants are not going into the real situation, they are just being trapped into this propaganda, I'll say. देखना होता क्या है. Suppose that in the morning you wrote your exam for GS1, you are fatigued actually, you are tired. So you need to prepare yourself mentally for the CSAT 2 before the exam itself. And that is not done in the coaching, because if that is being done, everything will be closed. Getting my point or not? So mental preparation is the first step for this CSAT part. Means, समझना है why I am saying like this, and please do notice each word. After the GS1 shock, we are not able to even sometimes do the simple calculations. As we are out of the exam center, we do those calculations easily. Means you didn't have practice to perform in those fatigued conditions, and now you think that you failed in the CSAT because of knowledge. It is not so. So पहला चीज
आपको पहले से 1 महीने 20 दिन एग्जाम के पहले यू हैव टू मेक योर सेल्फ रेडी कि अपन फैटिग्ड में भी रहेंगे तो भी अपने को कैसे उन एप्टीट्यूड काइंड ऑफ क्वेश्चंस को डील करना है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और ये हो जाता है। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज I just before the prelims I used to solve CSAT papers just after the lunch. In the summer it is very like you are feeling sleepy and all. I practiced like for last 10 to 15 days in that manner only, 1 hour after the lunch. So this is not a plan or study package, okay? This is something which comes out of experience. Fine. Second, as far as you are concerned about the quantitative aptitude, you need to have understanding that what are the blocks in this topic. समझना how we will move in this CSAT part. Suppose that topics like HCF, LCM, ठीक है, number systems, you can say number series, okay dear. Suppose that you have a topic that is average, you have a topic that is ratio and proportion, okay dear. You have a topic mixture and allegations, okay dear. You have a topic here percentage, and I again say अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में क्लास अटेंड कर लेना, लेकिन आज मैं मेरे तरीके से ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो आके तूफानी बात करना उससे ये सब कुछ नहीं है, यही मार्केट हुआ है और इसीलिए बेड़ा गर्क हो रखा है सीसेट के टाइम पे, क्योंकि इजी है, उसको जबरदस्ती ऐसा बना दिया है। परसेंटेज व्हेन यू टॉक अबाउट, देन यू विल हैव अ टॉपिक दिस प्रॉफिट एंड लॉस। फाइन डियर, this is suppose that a block 1, okay. Why I call this as a separate block, because यहां पर you need just a 5th standard नॉलेज, ठीक है। और उसको अगर आप नॉलेज कहने लगे इस एज पर आके तो मुझे उस पर थोड़ी सी हंसी आएगी, ठीक है। एक 5वीं क्लास के बच्चे की तरह आपको क्या करना है, HCF क्या है, LCM क्या है, व्हाट इज HCF एंड LCM, फाइन। व्हाट यू डू इन सपोर्ट, यू जस्ट डू सम एग्जांपल्स to revise, okay. No need to have multiple shortcut formulas here. ध्यान से देखना इस चीज को, what I am trying to deliver. Just अगर मैं आपसे एवरेज की बात करूं, what is the formula, क्या बात कर रहा हूं मैं, what is the formula, okay. Ratio and proportion, यार if somebody asking ratio of x and y, तो क्या आपको ये बताना पड़ेगा he is asking for x upon y? If it is so, then you are on the right critically endangered category, okay. Mixture and allegation, the here itself ratio and proportion की ही बात करेगा। Percentage and profit and loss, what is the formula for calculating percentage, right. 10th क्लास से ऑनवर्ड्स हम अपने परसेंटेज ही तो कैलकुलेट करते रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं कि 10th में मेरा 98%, ठीक है। तो
टोटल मार्क्स मान लो मेरा वहां पे 600 का होता था, देन हाउ मेनी मार्क्स आई विल हैव। किसी को सपना आया आई विल गेट 99% इन माई 12th and he wants to know how many marks I'll be getting out of 500. ठीक है? If you know this formula, believe me, to solve questions out of this topic, you need nothing. ठीक है? जैसे मैं यहां पर बात करूं आपसे प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। टुडे I will do the mindset making for all topics of quantitative. Then I will make hardly 5 minutes video for each of these topics by explaining, by taking examples and taking what formula needed for that. So we will have some 5 to 7 videos of hardly 5 to 6 minutes each. Fine. I will tell you this CSAT is why so easy. बाकी आपको बड़ा समझना है तो आप समझ सकते हैं। जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, पता है यहां पर आपको क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सम पीपल विल बी लाफिंग कि ये तो मुझे पता है। इंटरेस्ट, ओके, आप इसको अलग भी कैलकुलेट करते हैं, इसका सब टॉपिक पार्ट हो सकता है। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस। आप मुझे ये बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होता है? सीपी पर, सेलिंग प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर कि एमआरपी पर? दिस मार्क प्राइस और यू कैन से एमआरपी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ somebody ask कि डिस्काउंट किस पर होता है, आई एम pretty sure many of us may confuse. तो अपने को क्या याद रखना है? डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटिंग ओवर द कॉस्ट प्राइस बिकॉज दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, राइट? If you know these 2-3 basics and the percentage का formula, believe me, no question can be out of your reach from these two topics. Believe me, I am saying. Clear है अभी बात को? So I'll be making a separate 5 minutes video for this, 5 minutes video for this, 5 minutes video for this. Like if I talk about mixture and alligation, averages, यार सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या एवरेज का ये फॉर्मूला बचपन से हम नहीं जानते हैं? एक बेसिक आपको जो रिक्वायरमेंट है वो मैं यहां पर पहले ही लिख चुका हूं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्लीज डू नोटिस दिस वर्ड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। So this will be the block 1 for our quantitative aptitude, right? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसके अलावा भी बहुत कुछ दे आस्क, सो नाउ आई एम गिविंग यू ब्लॉक 2, ठीक है, एंड दैट इज टाइम, स्पीड, distance, time and work. Okay, if you are talking about this, यहीं पर हम लोग क्लॉक एंड कैलेंडर भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट? चलिए, पता है बच्चे, इफ आई टॉक अबाउट अ सिंगल एग्जांपल, लेट्स से टाइम एंड वर्क, ठीक है, यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक अगर आपको बता दिया जाए, देखना लॉजिक क्या है। टुडे यू विल फील एक्चुअली, देखिएगा बच्चे, इफ आई से 2 men, सपोज दैट 2 आदमी हैं, वो किसी काम को 5 दिन में फिनिश कर देते हैं, ठीक है, इस चीज को बॉक्स में बंद कर लेना। एंड व्हाट आई मीन बाय से
2 men completed a work in 5 days. ठीक है, I will represent this statement by this equation. What does that represent? 2 men, 5 days, work done is complete. Suppose that someone says कि आधा काम कर देते हैं, I will write here 1/2. Suppose that someone said कि they did 3/4 of work, I will say 2 men, 5 days, work done is 3/4. Clear है? If you remember this statement, believe me, in time and work you will have nothing to study. I'm saying nothing, and believe me, this is an experience I am saying as an UPSC aspirant. Also I deal in GATE and CSIR, all these part A aptitude. Believe me, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं. कैसे नहीं चाहिए? देखिए, मान लो कल को किसी ने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि 2 लोग किसी काम को 5 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 5 लोग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मीन्स यू वॉन्ट X नंबर ऑफ डेज, राइट? सपोज दैट. अब यहां मैन वुमेन दोनों हो सकते हैं, तो हम मैन वीमेन डेज वर्क डन ऐसे लिख देंगे इक्वेशन. फिर चलिए, अब यहां का मैं बता देता हूं आपको लॉजिक. देखिए, इस इक्वेशन को कैसे पढ़ना है, प्लीज बी ऑन द बोर्ड. इफ आई से 1 मैन, दिन 5 ही रखूं, तो वर्क डन कितना होगा? 2 आदमी पूरा काम करते हैं, जब एक ही आदमी लगेगा तो काम ज्यादा होगा कि कम? ठीक है. अब कोई बोले एक आदमी 1 दिन में कितना काम करेगा? एक आदमी 5 दिन में इतना करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? कोई दिक्कत? That is another logic derived out of this. Now, out of this, अगर कोई आदमी आपसे उल्टा पूछ ले, इसलिए 1 man can complete the work in 5 into 2 days. क्यों? सपोज दैट बच्चे वाली कहानी, एक आदमी ने 1 दिन में 1/3 काम किया, तो 2 दिन में कितना करेगा? 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 1/3, 2/3 हो गया. 3 दिन में कितना कर लेगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट मीन्स 3/3. सो वट एवर, इफ यू हैव दिस नॉलेज, देन यू कैन जस्ट रिवर्स दिस टू गेट द टोटल टाइम टू कंप्लीट दैट वर्क. Believe me मेरे बच्चे, if you have this logic in your mind, then nothing to study for time and work. अब वो जो 5 minutes का वीडियो I will take, you will feel the joy actually. Okay? वो मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस को लिख के टाइम वेस्ट होगा हमारा. That I will do over the pen tab itself. Okay? क्वेश्चंस होंगे, मैं पीपीटी पे आपको करा दूंगा. Similarly, if I talk about time, speed and distance, पता है इसके लिए क्या चाहिए होता है? स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओनली दिस फॉर्मूला एंड कॉमन सेंस. आप बोलेंगे सर इसमें रेलवे वाला आता है, बोट एंड स्ट्रीम आता है. आई एम सेइंग जस्ट वन फॉर्मूला विच यू लर्नड एट योर चाइल्डहुड. अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट योर कॉमन सेंस. अब उस कॉमन सेंस में भी पता क्या है, 2-3 स्टैंडर्ड चीजें हैं जिनको अगर आप याद रख ले, मतलब याद क्या यार, ऐसे ही हो जाता है, 1-2 बार बोलने भर से हो जाता है. यू आर गेटिंग? क्लॉक एंड कैलेंडर, इसके लिए मैं आपको ऑड डेज के थ्रू, अब होता क्या है बताऊं, प्रॉब्लम क्या है? आई एम सॉरी, कई बार मुझे लगता है आई एम लाइक, मैं मेरे नेचर के खिलाफ जा रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, फिर भी होता क्या है, एसएससी एंड बैंकिंग दे हैव कंप्लीटली अ डिफरेंट डिमांड. CAT has completely different demand, but your CSAT mentors are either in the SSC or banking or in the CAT, and here the disaster happen.
दे विल से यू कि आपको x नहीं लेना है। अरे x लेके क्या हो जाएगा यार, इतना क्या मेरा मैथमेटिक्स, क्या मैं इतना मतलब 6वीं क्लास में भी मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? और उससे इतना डराना क्यों? वाई सो मच यू एंड क्राई ओवर दैट? डियर, इट इज जस्ट द लाइक ना brain boss, you can say. Okay, so believe me, when I will tell you this odd days ka concept, I will take 7 to 8 minutes, but after that you will need just 5 seconds to solve any problem. No trick I will tell, I will work on concepts itself. Clear? ट्रिक के नाम पर मैं आपको जादू सिखाने नहीं जा रहा हूं। क्लियर है? चलिए, एक अपने पास जो ब्लॉक थर्ड आएगा, वो कुछ इस टाइप की चीजें रहती हैं हमारे पास। जैसे मैं इसमें ज्योमेट्री को रख सकता हूं, ठीक है। हैव पेशेंस एंड टुडे यू विल हैव एक्चुअली लाइक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस। आई एम सेइंग ज्योमेट्री पार्ट, ठीक है बच्चे। अनदर मे बी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी इन शॉर्ट आई एम लिविंग, ठीक है। वेन डायग्राम, probability. I am saying when I was solving as an aspirant test series of some particular A coaching, probability के ऊपर even I had my project in my IIT, probability and statistics. I was surprised at what they are asking in test series. UPSC can never ask such questions, yaar. So here you just need a common sense about probability, nothing more than that. When I talk about PNC, you just two words, combination, that means selection or arrangement, right? Please notice these two words. मैं इसना आज इसलिए लिख रहा हूं सजा के ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें and you will have the feeling of completeness. When I talk about combination, देखना क्या होता है। Selecting R articles out of N is denoted by NCR, ठीक है। अब आप फैक्टोरियल के नाम पर डरने लगेंगे क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज में हैं। डरिए मत, वो कुछ भी नहीं है। कल को अगर आपको ये बता दिया जाए कि चांद पर रसगुल्ला मिलता है तो आप मान लीजिए हाँ ऐसा होता होगा, दैट्स इट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आई नो हाउ टू टीच ह्यूमैनिटीज वाला ऑल्सो, फाइन। और डोंट थिंक दिस इज फॉर ह्यूमैनिटीज। साइंस वालों के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, वो इस क्या बोलते हैं उसको, अंदर घुटन में मरे जाते हैं कि यार अपने को कॉमन सेंस नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कॉमन सेंस किसके थ्रू जाना है। एंड इफ आई एम डिलीवरिंग हियर किसके थ्रू कॉमन सेंस जाना है, एवरीथिंग विल बी कमिंग ऑटोमेटिकली। You are getting my point? When I talk about selecting, this is what? इसको क्या बोलेंगे? Selecting R articles out of N articles. Let's say 10 चीजों में से कोई 4 चीजें सेलेक्ट करने के तरीके 10C4. क्लियर है? अभी C कैसे डील होगा? I will tell you, no issues. अब यहीं पर मैं आपसे कहूं, देखना इसको, अरेंजिंग 4 आर्टिकल्स, आई एम सेइंग अरेंजमेंट, सो दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. व्हाट? दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन. ओके डियर, कोई डाउट किसी को? आउट ऑफ 10 articles, ठीक है बच्चे? So if somebody is asking this, this will become 10P4. अब P और C को कैसे डिनोट करना है? We will do just one line mathematics for that. Not, आपको ह्यूमैनिटीज में है तो you will remember that. Fine. Probability में मैंने पहले ही बोल दिया भाई, कोई चीज होगी या नहीं होगी. Let's say something happens, it has the probability 1. If this does not happen, it has the probability 0. 50-50 chance है, it is probability 1/2.
70-30 चांस है, इट हैज प्रोबेबिलिटी 1/7. गेटिंग माई पॉइंट? सो प्रोबेबिलिटी जो टेस्ट सीरीज में आपको खिलाया पिलाया जा रहा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी सीसैट एग्जाम. ज्योमेट्री पर आ जाए हम लोग. सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन और हद से हद स्फीयर और सिलेंडर. ठीक है, सिलेंडर रहेगा तो कौन भी रहेगा. डोंट वरी कि मैंने इतने सारे वर्ड्स बता दिए. सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये आपको नहीं याद है. सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर. अब देखिए हाउ इट विल बी यूज्ड. सपोज दैट यहां पर आपने एक गाय को बांध दिया, ठीक है, और वो गाय एक सर्कुलर में घास को खा रही है, तो ये एक सर्किल बन गया, राइट. अब ये जो पाथ कितना वो चलेगी एक राउंड में, दैट मींस पेरिफेरल. इसके एरिया की बात कर दे अगर, कितना एरिया उसने खाया होगा घास का, दैट मींस एरिया ऑफ सर्किल की बात कर रहा है, राइट. Ultimately, for geometry, you need just those formulas which you studied at 6th, 7th standard. And once I will write those in one go, you will feel उसके बाद just apply the common sense. And for common sense, that 5-minute video will work as a magic for you, I'm sure. Is that clear? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए. This is the पिक्चर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर सीसैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट. क्लियर? एट लास्ट आई विल समराइज माई सेल्फ. इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है. आई विल से सीसैट के अंदर प्लीज रिमूव योर फियर ऑफ इनकम्प्लीटनेस, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी. And that will happen only when you will have a feeling of completeness. What I tried to deliver today, that is just a message to inculcate in you that what is feeling of completeness. You got the point or not? और मेरी इंग्लिश इतनी तो ठीक ही है कि मतलब हिंदी वाले को भी समझ में आ रही होगी, तो कल को मैसेज में डोंट से कि सर हिंदी में बता दीजिए. बहुत ताकत लगती है एक चीज़ को सारे एंगल से समराइज करने में. और हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है एज एन एस्पिरेंट, मैं फील करता हूँ हमेशा, है ना. और जब भी मुझे जॉय के साथ पढ़ाने का मन होता है, आई फील लाइक एनर्जेटिक कि यार जस्ट लाइक ए यूपीएससी एस्पिरेंट. ओके, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वर्ड. अगर एग्जाम से पहले 15 डेज भी अगर आपने मेरे साथ मेंटल प्रिपरेशन कर लिया, व्हाट मेंटल प्रिपरेशन, एंड दैट इज नॉट समथिंग मेडिटेशन और योगा, नॉट लाइक दैट. अटेम्प्टिंग इन एग्जाम लाइक सिचुएशंस. अटेम्प्टिंग मीन्स एक्सरसाइजिंग, ओके. Either your test series or some assignment. I will be doing PYQs के through mental exercise for you, because that I had done as an UPSC aspirant and that works in wonder actually. So I guess कुछ लोगों ने तो क्लास बीच में छोड़ दिया होगा, उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ. Persons who attended from the minute 1 to the last, believe me, you are gonna achieve something. ठीक है, क्योंकि whatever I have delivered here, बच्चे, that is not some commercial thing. That is like, you can say I have earned it over the years of teaching experience as well as UPSC aspirants feeling.
ओके, सो बिलीव रखिए, भरोसा रखिए कि सी सेट के अंदर में इस क्वांटिटेटिव वाले फीवर को आई विल रिमूव फॉर श्योर। तो मैं क्या करूंगा, अब पेन टैब पर 5 मिनट्स के इनके 5-7 मिनट्स, कोई 10 मिनट्स भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हर चीज़ के लिए ये वाली माइंड मैपिंग मैं आपको कर दूंगा, क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि जो मैं कंप्लीटनेस फीलिंग बता रहा हूं वो कैसे वर्क करती है। क्लियर है? तो अभी यहां पर क्वेश्चंस नहीं करूंगा क्योंकि फिर क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है बच्चे, कोई डाउट किसी का? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो 9971030052 इज द नंबर। टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उपेंद्र सिंह वाला, जीएस एंड मैथमेटिक्स ऑप्शनल, वहां पर अपडेट्स रहेंगे। बाकी मैंने जितना प्रॉमिस किया है मैं करके रहूंगा, बिलीव मी। जनरल स्टडीज में पॉलिटी का माइंडसेट मेकिंग आई हैव डन फॉर करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स आई हैव डन, ज्योग्राफी आई हैड स्टार्टेड बट आई विल कंप्लीट दैट एज सून एज पॉसिबल। थिंग्स आर वर्किंग और मैं उस वैसे करने की कोशिश कर रहा हूं जैसे मैं आपके साथ एग्जाम तक प्रोसीड कर रहा हूं, आपको एक फीलिंग के साथ वहां तक लेकर जाऊं। तो हर चीज मेरे प्लान में है, डोंट वरी, मैं कहीं से क्विट कर रहा हूं, हर चीज अपने प्लान के हिसाब से हो रही है। ठीक है, चलिए टेक द स्क्रीनशॉट, इट विल वर्क फॉर यू। स्क्रीनशॉट के लिए द नंबर पीपल मे आस्क 9971030052। ओके, उपेंद्र सिंह, व्हाट UPENDRASINGH। चलो बाय बाय, गुड लक।